there is it can a really long time, up to 7 to 10 years, to figure out what is going on. And so we created Women with Wings, a place where people dealing with endometriosis can talk, share their story, and work on the solution together. And today we have Dr. Ratna ma'am with us. She's a public health physician, and I have been working under her guidance in the Women with Wings initiative. And so, ma'am, I would like to request you to, and I would like to invite you to initiate these discussions. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Diksha. And just to add to what Diksha said, Women with Wings is a 3-year-old initiative. Over the last 2 years, we've held around 20 such focused group discussions on various topics. And each topic was meant to understand what kind of challenges people face. Today's topic is delay in diagnosis, and we know that the onset of signs and symptoms is much earlier than the actual diagnosis, and people, usually go from one doctor to another to try and find out why they are not getting relief from their symptoms. So today's focus group discussion will sort of try and understand why this delay happens, who are the factors or the people who are responsible for these delays. Is it the doctors? Is it patients? Is it families? Is it the environment? Is it lack of awareness? So we will try and seek answers for all these questions. And then with using this information, we will try and see if there are some solutions. So if doctors are unaware, can they be trained? If patients are unaware, can they be given more information? Those kind of things. So I'll start with the first question. How many of you, when usually endometriosis starts with painful periods. There are variations to it, but the maximum women usually have painful periods. Some do not and realize that later in life, but a majority of them have painful periods. So how many of you, before you had your actual diagnosis of endometriosis, had other signs and symptoms, like difficulty in digestion, painful periods, excessive periods, or other signs and symptoms that you were seeking treatment for without knowing that this could be possibly endometriosis or some other condition? So how many of you had some signs and symptoms? And you could just raise your hands. There is a raise hand function on the bottom of your Zoom screen. And you could just, yeah, Vinisha, you've raised hands. So maybe you could, Vinisha and Divya have raised hand. Nupur also. Saili, okay. Looks like everybody had a similar experience. So my question is, how many years did you have it before you actually went to a doctor? Anyone can start and maybe we'll go around asking questions. So Vinisha, maybe you would like to answer for how many years did you suffer before you actually went to a doctor? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम अराउंड 1 ईयर मैम मेरे को समझने में लग गया कि मेरे को ये मतलब पेन क्यों होता है। मैम शुरू में तो 5-6 मंथ्स मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मैम ये पीरियड्स होने से पहले ही मेरे को बहुत सीवियर पेन होता था। पीरियड्स खत्म भी हो जाते थे, ब्लीडिंग नहीं होती थी, लेकिन पेन रहता था मैम। तो मेरे को लगा कि मे बी स्टमक पेन है। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, उनको भी समझ नहीं आया। फिर मैम कम से कम 10 मंथ्स तो मेरे को ये समझने में ही लग गए कि ये पेन जो है मेरे को पीरियड्स के आसपास होना शुरू होता है, क्योंकि मैं पीरियड्स के बाद भी होता ही रहता था, मतलब फुल मंथ मेरा पेन में निकल जाता था। फिर मैम अराउंड 10 मंथ्स बाद मैंने गायनी को दिखाया, तब उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस बताया। मैम ये 2020 की बात है और मैम अभी 2023 आ गया है। अभी मैंने मैम लास्ट 1 मंथ से इनसे रानी मैम से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, बट मैम 3 साल हो गए मेरे को, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, गाजियाबाद का, दिल्ली का, जहां जिसने बताया मैम, मेदांता, हर जगह मैंने दिखा लिया। मैम कोटक्कल है, एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा डॉक्टर है हमारे यहाँ पे, हॉस्पिटल है मैम। बट मेरे को मतलब एक होता है ना कि 1% तो रिलीफ मिले, मतलब मेरे को 1% भी रिलीफ नहीं मिला। मतलब हर महीना मैम पहले से ज्यादा पेनफुल ही होता गया मैम मेरा, मतलब हर महीने ये मैम
मतलब इतना रोती थी ना मैम, मैं शायद मतलब मैं कभी नहीं रोई मैम लाइफ में इतना जो ये मैं 2-3 सालों में जितना रोई हूँ। मतलब मैं अभी 3-4 महीने पहले तो मैम ऐसा हो गया, मेरी बेटी है मैम 7-8 साल की, मैं उससे लग के इतना रोई, मतलब मेरे को इतना पेन मैम, ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा और पेन बंद नहीं हो रहा मैम, मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं इससे सरवाइव हो ही नहीं पाएगा इस बार तो। हाँ जी। तो ये आपको पीरियड शुरू होने के कितने साल बाद इस तरह से पेन हुआ? मैम मेरी तो एज सोचो 41 हो गई है, और पीरियड्स तो अच्छा। अराउंड मैम कब हो गए होंगे, 14-15 ईयर्स में शुरू हो गए होंगे, 13-14 की एज पे। और मैम मेरे दो हाँ जी। बेबी हैं, बड़ा बेटा मैम मेरा 13 ईयर्स का है, कभी कुछ भी नहीं मैम, हमेशा नॉर्मल पीरियड्स होते थे, हमेशा टाइम पे होते थे मैम। बट हाँ बेटी जी। 8 ईयर्स की है, बट मैम 2020 से मतलब मेरे को ये शुरू हुआ मैम पेन होना, मतलब जी। यस में हाँ। 2019 से हुआ मैम, 2019 से 2020 आ गया ये समझने में कि पीरियड्स के आसपास होता है, तो मैम जी। यस मैम। और जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? मैम उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने तो मैम बस मेरे को वही दे दी, ये कौन सी होती है मैम, हार्मोनल पिल होती है, वही मैंने 3 साल खाई, बट मैम उससे मेरी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई। पहले कम से कम पीरियड्स अच्छा। आते थे, उससे फिर मैम पीरियड्स आने ही बंद हो गए, फिर मैम ड्रॉप ड्रॉप करके आने लगे, मतलब पूरा महीना हो जाता था, पुनः आप पूजा कर सकते हो, कुछ पता ही नहीं चलता था कब पीरियड, मतलब मैम उससे तो वो कंडीशन मेरी खराब हो गई। फिर उन्होंने कहा हाँ सिस्ट जी। की श्रिंक हो जाएगी मैम, श्रिंक भी नहीं हुई, फिर पेन भी शुरू होने लगा। अभी लास्ट में तो मैंने मैथ्स में दिखाया, वहां पे सर्जन है, तो उन्होंने कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप अपनी लेफ्ट ओवरी और यूट्रस दोनों निकलवा लो और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट मैम फिर हम्म। मेरा मन सा नहीं माना, मतलब उस चीज के लिए भी, ओवरी और ये निकलवाने के लिए। तो मैम फिर मेरे को यहाँ रानी मैम का पता चला, तो मैम टचवुड अभी मेरे को पहले से काफी बेटर है, मतलब थोड़ा आराम है मैम। अभी भी मेरे पीरियड्स हैं मैम, दर्द था इस बार भी, बट इतना नहीं जितना मतलब पहले था, अभी थोड़ा पीरियड्स भी नॉर्मल आ रहे हैं मैम। जी। उन्होंने मेरे को वही थी एंडोरेग दी थी मैम, वो 750 का एक सेशे आता है 10 टैबलेट्स का, तो वो आपको हाँ मतलब जी। लेनी ही होती है, वही टैबलेट नाइट में लेनी है। बट मैम उसने तो मेरी साइकिल बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल एकदम खराब ही कर दी, पता ही नहीं चलता था कि पीरियड्स कब शुरू हो जाएं, होते भी नहीं थे, बट मैम ड्रॉप ड्रॉप करके होते रहते थे। बट मैम हाँ, वो हार्मोनल से। एलोपैथी में मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है मैम, एलोपैथी में तो मैंने हर जगह दिखाया मैम, जिसने जहां बताया ना मैम, सही मतलब मैम, मैं आप जी। विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2 to 3 lakhs रुपीज मैम मैंने अपने 2-3 साल में लगा दिए अपने। जी। हाँ। यस मैम। थैंक यू विनिशा। दिव्या, आपका क्या अनुभव रहा? दिव्या, कैन यू हियर मी? यू आर म्यूटेड। सो मे बी वी हेलो मैम। यस। यस दिव्या। एक्चुअली मुझे पहले 5 डेज पीरियड्स आते थे और कोई पेनफुल नहीं जी। रहा। जब मैं कॉलेज करने के लिए अपनी जगह से दूसरी जगह गई तो शायद खाने वाने की वजह से जो भी था, तो बहुत कम पेन होने लगा। बट आफ्टर मैरिज ना मुझे ऐसे होता था पीरियड्स में, सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड्स, उससे पहले नहीं बाद में, कि कोई चाकू मार रहा है, स्टेबिंग पेन बोलते हैं ना वो, बहुत। तो फिर मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। ये 2019 की हम्म। बात है। मुझे 18 से बहुत पेन स्टार्ट हुआ और मुझे वोमिटिंग भी होती थी पीरियड्स में। फिर 9 तो किसी भी डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि मुझे एंडोमेट्रोसिस है। मैंने एम्स में भी दिखाया, किसी ने भी नहीं बताया। फिर 2020 में एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको एंडोमेट्रिस है, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हम कर देते हैं। तो मैं उस टाइम कोविड का भी टाइम था और मैं बहुत भटक रही थी, क्योंकि एम्स में भी मेरी सर्जरी बोला गया था, तो लेकिन 3 to 4 टाइम्स कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे पास कैंसर पेशेंट है, हम आपको नहीं ले सकते, ऐसा ऐसा। तो मैंने वहां पे सर्जरी करवा ली, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो मेरी सर्जरी अच्छी नहीं हुई, उसके बाद मुझे बहुत और एक्सट्रीम पेन होने लगा, मतलब और बड़े सिस्ट बन गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर मेरी सर्जरी हैदराबाद में हुई। उसके बाद से मैं अभी ठीक हूँ, अच्छा। बट 6 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कंसीव करने का, बट कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम्म। भी सिस्ट है, अब तो फाइब्रॉइड भी हो गए हैं। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? अभी 33। 33 में आपको फाइब्रॉइड्स हुए हैं बताया है? हाँ, फाइब्रॉइड अभी साइज बहुत बढ़ गया है। पहले तो कम ही था, जब सर्जरी के टाइम डॉक्टर ने छेड़ा नहीं था, बोले बहुत छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप नेचुरली कंसीव कर सकती हो, बट हुआ ही नहीं।
और अभी फाइब्रोइड बोल रहे हैं जी। कि बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने आईवीएफ भी कराया, आईवीएफ भी मेरा फेल हो गया। अच्छा, और आपके जो पीरियड शुरू होने के और ये जो पेनफुल पीरियड्स होने के बीच में का कितना गैप था? मे बी 13 to 14 years। 14 इयर्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर नहीं। प्रॉब्लम स्टार्ट हो? हाँ हाँ, हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मली पीरियड्स आता था, 5 days का कोई पेन नहीं, मुझे फील ही नहीं होता था। और जब शुरू हुआ उसके बाद से आपको 6 साल लगे एक्चुअल डायग्नोसिस में? जी जी। मुझे नहीं, जब मुझे शादी के बाद बहुत पेन होने लगा, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर के पास जाती थी तो बोलते थे अरे लड़कियों को होता है, क्योंकि पहले पेन नहीं होता, सिर्फ पीरियड्स में होता था, तो बोले अरे लड़कियों को होता हाँ है, टैबलेट खा लो, वो यही बोलते थे। फिर जब शादी हाँ। जब मेरी हुई, उसके 1 year में मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, मतलब वेजाइनल एरिया में। तब मैंने जब हाँ। डायग्नोसिस कराया तो उनको 1 साल लग गए। 2020 में उन्होंने बोला कि मुझे एंडोमेट्रोसिस है। अच्छा, और एंडोमेट्रियोसिस का के बारे में और कुछ बताया? सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस बोला कि अगर वेजाइनल एरिया में पेन है तो एंडोमेट्रियोसिस वहां कैसे हो सकता है और क्या कारण है, ये सब कुछ समझाया? हाँ, मतलब उन्होंने वही बोला कि ब्लड स्टक हो जाते हैं वहां पे, उसकी वजह से पेन होता है, मुझे स्टेज 4 है, ऐसा सिस्ट हो गए हैं बस, और क्या। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। एंड नूपुर जी? नूपुर, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, I can hear you. यस, प्लीज गो Yeah. अहेड। Okay, so ma'am, I was diagnosed last year, actually last April. I don't know, there was some unusual pain in my lower left back area. And that was something unusual because it happened when my periods got over. And for 2, 3 cycles, I observed it. And it was like that only. Whenever my periods got over, that pain started and it used to last for like another 2 weeks, you can say. And sometimes it was very unbearable, like you couldn't stand for long hours and all. So I went for a diagnosis. I went for an ultrasound earlier. So earlier it said that it is just a cyst on my left ovary. So my gynecologist, she ignored it. She was like, it can be like functional cyst or something like that. Next, in the next ultrasound, she told me to get an ultrasound done next month after I get my cycle. When I got it done next month, the cyst shifted to right side. It was on the right ovary. And after again she ignored it, and I was told to get an ultrasound done after 3 months. So last year in ओके। September, when I got the ultrasound done, in that ultrasound it was mentioned that I'm having endometriotic cysts, and it was on both the ovaries. So earlier she gave me some like hormonal pill. It was birth control pill. It was given to me for 1 month. I had it. So the right side cyst got dissolved, and the left ओके। side was still there. It was like 4 centimeter. Then my gynec, she put me on Dynogest. So I ओके। started Dynogest in October last year. Firstly, she हम्म। gave it to me for 3 months, but those 3 months were like very horrible for me. Like it या। was the periods continued for, it was not heavy cycle, but the हम्म। spotting and all, it was very bothersome. It used to continue for around 15 to 20 days. And I mean, you never know when did the bleeding start. You या। and it was so bothersome, but luckily the pain was not there, but other things like mood swings, my anxiety got very worse. I used to get panic attacks, I used to get anxiety attacks, but that all subsided after 3 months. So I was told ओके। to continue Dymagist for another 3 months. So in total, I took it for 6 months. And after 6 months, my scan showed that there was no cyst, there is nothing. So my doctor ओके। told me that it's your wish if you want to continue with any normal like mini pill or something like Femelon or something. But I didn't do that. And after next
6 months, this September only, I got my ultrasound done as I was told by her. So again, now there is a cyst of 4 centimeter on my right ovary. So again, I have been put on Dynogest for 3 months at least. But right now, what my symptoms are, like I get migraines. Uh, Obviously, my periods haven't arrived, but sometimes I do get pain on my right side and my lower back, like left hand side, and especially like in the morning after defecation, the pain gets worse sometimes. Ma'am, your mic is mute, I guess. Yeah, so between the onset of your first period and the situation now, how many years did it take before you actually realized that something Ma'am, is no, not right? Yeah. Ma'am, I have always had like happy periods. Like they were scanty Okay. periods and they were not that heavy, and even the pain was not that much. I mean, that was bearable, not that much कि मतलब मुझे कुछ ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़े. Yeah, but I remember when my period started at the age of 11 or 12, the first 2 years were difficult for me, not pain wise. Pain was there, but I remember that I used to puke during my periods, Oh, especially the first two days were very horrible for me. I used to take off okay. from school or like, and they used to continue for around 6 to 7 days. Oh, But okay. after 2 3 years, it got subsided. Like I went to abroad also for my higher studies. I was working over there. So those were fine. Mm, Like those years were fine. I didn't have any major problem during those years. But after my wedding, after I had my baby, I had I conceived naturally. And okay. my delivery was also normal. I didn't have any complications during my entire course of pregnancy. I had Mm-hmm. normal delivery, and but after the delivery of my baby in 2019, um, the first 3 cycles they were like heavy bleeding. I was suggested to take Trapic MF to stop the bleeding. But Mm-hmm. after that, till last year, like the periods were fine. They were quite regular. The bleeding was not much, and even the pain has been bearable for me. Mm, Sometimes okay. migraine was a problem, but not to Okay. that extent. Okay. So, what prompted you to go for your diagnosis then? If Ma'am, just the migraines? Yeah. no, ma'am. Since last year, during my cycles, I used to get pain after defecation, and it was like unbearable pain on my Oh, left lower side. And sometimes that o- pain goes to my thighs and then to my legs. It was like sciatica pain. okay. And Hmm. sometimes that pains get very unbearable. Like I have to take some or other painkiller for it. And that prompted you to go to a doctor. So, which doctor did you Yes. go to? Did you go to a Ma'am, gynecologist? yeah, the Yeah. gynecologist who did my delivery, so I was consulting her only. So I went Okay. to her. I was actually taking homeopathic treatment also for the cyst, but it didn't work for me because I was on homeopathic medicines for a year. It used to Mm-hmm. subside my pain to some extent. It used to reduce and low my bleeding also, but long term, it didn't give me any fruitful results. Ah, okay. So, thank you. Thank you for sharing that. And Siley, if we can hear from you. Yes, ma'am. Yeah, Okay. please go ahead.
Yeah, so thank you so much first for inviting me to join this focus group meeting. This is for the first time that I'll be joining this meeting with Pair Academy, and Diksha ma'am had invited me for this session. Now, my journey is a bit different from others because I haven't had a definitive diagnosis of endometriosis until now. But right from my first period, that is menarche, till now, I've always had heavy symptoms around on and before my periods. Yeah. So yeah, and I have done lots of procedures, like as in colonoscopy to check wherein if there's any endometrial implants or involvement of endometriosis near my colorectal sections. Because I like one of the participant mentioned earlier that she also had some problem related to blood in her stools or like pain after the stools. I had a problem of like I had bleedings after my stools, and that was specifically after 4th or 5th day of my periods. So what happens is I can't go through my periods without taking painkillers medications because it pains a lot for me. Bleeding is very normal for me, that's not a concern, but pain, it's a very throbbing pain for me. And Yeah. Mm. till now I haven't had a definitive diagnosis because ma'am, you may be aware that like laparoscopy is a very invasive procedure, and not everybody's endometriosis is sensitive to scans and other non-invasive diagnostic procedures. And I have been falling in that category wherein, you know, I always had the symptoms, and this is also one of the major signs of so-called delay, that people have diagnosed, I mean, people have symptoms of that, but they are not captured in the non-invasive form of things that you are having right now in the market. So I think I have been through 10 to 12 years of various offices down to doctors saying that, you know, I have horrible excruciating pain, and have been taking, I have also had taken Leuproid medication treatment like for 3 months. Post that, I felt a little bit better, and that happened because my CA 125 level was a bit more as compared to what it was. So I had been suggested that therapy. So based out of all these experiences, I started up an online platform known as Endo Welfare Mumbai for raising awareness of this. And I'm a counseling psychologist. And recently I was in Glasgow, University of Glasgow, United Kingdoms, for my master's. Therein I did my dissertation to understand and study the self-concept and the symptoms, like how the interaction between the symptoms and the self-image of an individual goes through navigating their diagnosis of endometriosis. So yeah, so I don't have a definitive diagnosis of endometriosis, but right from my menarche, I have had all those kind of other symptoms and experienced that as well. So my side is from the other side of the spectrum, but with the same problems around it. Yeah. Yeah, thank you. And it happens to many women that they don't have a definitive diagnosis. They just keep getting symptomatic treatment. Yes. So if you have heavy periods, then treatment for heavy periods. If you're having pain, then subsiding the pain. If you have infertility, then managing the infertility. If you're having say difficulty in digestion, then managing the indigestion. But then the whole spectrum put together leading to a diagnosis, very few doctors do that unless they get something on a scan or they do a laparoscopy and see cyst. And this is a common problem for many women, around the world, not just in India. Yes. So thank you. And I will come to the non-invasive versus the invasive techniques a little later. But I have Anshul, and I think this is somebody else, but is named as Diksha. So maybe Anshul, you can speak first, and then I'll go to Diksha. Hello, ma'am. Hello. Thank you for inviting me. मुझे ये प्रॉब्लम एक्चुअली पास्ट 1.5 ईयर से चालू हुई है. माय एज इज 43. उसके पहले मुझे हमेशा पीरियड्स नॉर्मल रहे हैं, टाइमली आते थे, कभी कोई इशू नहीं हुआ पेन का. मतलब कि मुझे याद नहीं कि कभी मुझे कुछ हुआ हो. मतलब जब मैं 13 या 14 एज की थी तभी स्टार्ट हुए थे पीरियड्स. और अभी पास्ट 1.5 ईयर्स में मुझे जब पहली बार पीरियड्स पेनफुल रहे और वो 10 डेज तक, मतलब 3 डेज में पीरियड फिनिश हो गए और कंटिन्यूशन में 10 डेज तक मुझे बैक पेन रहा, तो मुझे लगा कि ये समथिंग इज नॉट यूजुअल.
क्योंकि हम पीरियड्स हम्म। पेन को बहुत नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल है, बट इट्स नॉट एट ऑल नॉर्मल। तो मैंने डॉक्टर हाँ। को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा अपेंडिक्स का है, क्योंकि तुम्हारे राइट साइड में है। तो मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं, आप प्लीज मेरी सोनोग्राफी कीजिए, मैं मतलब सोनोग्राफी करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने एब्डोमेन की करी। उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं मिल हम्म। रहा है। तो मैंने कहा आप मेरी पेल्विक की सोनोग्राफी कीजिए प्लीज। तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा पुश करना पड़ा, और उसमें हाँ मुझे जी। 6 सेंटीमीटर की चॉकलेट सिस्ट निकली, मतलब राइट ओवरी में। और अच्छा। तब भी उसमें उन्होंने सोनोग्राफी में क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये एंडोमेट्रियोसिस मतलब चॉकलेट सिस्ट है, ये एंडोमेट्रियोसिस है। हम्म। और हम्म। लाइक मतलब उनके किसी कन्वर्सेशन में मैंने वो वर्ड पिक किया कि एंडोमेट्रियोसिस है शायद ये। मैंने हम्म। फर्स्ट टाइम वो वर्ड सुना था, मैं घर आई, घर पे आके मैंने पूरा अपना रिसर्च किया। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि ये मैं कहाँ मतलब लाइक स्ट्रक हो गई हूँ, अब अभी क्या होने वाला है। तो उन्होंने मतलब उसके बाद मुझे एक्चुअली सिम्टम्स, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स काफी मेजर थे। बर्पिंग, हाँ। ब्लोटिंग इट्स लाइक कि हाँ। मेरा ऐसा लगता था कि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ। विद इन 2 days इट बिल्कुल फ्लैट स्टमक। तो मुझे समझ में नहीं हम्म। आ रहा था कि ये, मुझे लग रहा था शायद मेरे डाइजेशन में इशू है या मेरा डाइट में कुछ है। तो मैंने एकदम बिल्कुल प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट, मैंने सब अपनी पूरी डाइट चेंज कर ली, फिर भी ये चीजें ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनली मैंने हम्म। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। मैं एक्चुअली मैंने पेन किलर्स नहीं लिए, दर्द सहन किया है मैंने काफी, पेन इसका। और हम्म। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में थोड़े सिम्टम्स में हुए ठीक। सिस्ट का साइज भी कम हुआ था, पर वो वापस से 8 सेंटीमीटर हो गया। पर मैंने ओके। फिर उसके बाद फिर मैं मतलब रानी मैम के पास ही आई हूँ। उसके बाद से मेरा थोड़ा सा पीरियड्स रेगुलर हुए हैं। मुझे पेन इटसेल्फ, मुझे मतलब एंजाइटी अटैक्स और मतलब मेंटल हेल्थ मेरी ज्यादा खराब हुई है एंडोमेट्रियोसिस से। हम्म। Thank you, Anshul. And uh, I'm going to ask the person to unmute because it is written as Diksha. So the hand is raised if you can speak. Am I audible? Yes, you are audible. मैम माय नेम इज पुष्पा। वो मैम मुझे आ नहीं रहा है कि नेम चेंज कैसे करना है इसमें। कोई बात अ, नहीं, हाँ आप बताइए। मैम मेरी जो स्टोरी है वो ये रही है कि अभी मैं 33 इयर्स की हो गई हूँ। और 26 जी। इयर्स में मुझे डायग्नोज हुआ कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। और तब मेरी हाँ। शादी का 5 या 6 महीने मुझे हो गए थे। और मुझे अचानक से बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा, कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड ही करना पड़ा। तो उससे फिर मैं बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो वहां पर से मुझे काफी दूर आना पड़ा। तो वहां मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड से मैम ने मुझे बोला कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और ऐसे में तो आप मदर भी नहीं बन पाओगी। वो फर्स्ट डे था जो अच्छा। मेरे को आज तक याद है। मैम मेरी आंख में आंसू थे कि मैम ये क्या बोल रही हैं। तो उसके बाद मैम, हाँ। हल्द्वानी एक जगह है उत्तराखंड में, तो मैम ने मुझे बोला हम्म। कि आप दिल्ली एम्स जाइए। मैं दिल्ली एम्स में आई 2017 में। तो हम्म। 2017 में मुझे वहां पर सर ने बोला कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने मेरे को सर्जरी की। और सर्जरी करने के बाद मुझे बोला कि आप 6 मंथ तक नेचुरली कंसीव के लिए ट्राई कीजिए। तो मैम नेचुरली हम्म। ट्राई किया, बट कंसीव नहीं हुआ। और पेन मेरा 3 महीने के अंदर फिर से स्टार्ट हो गया, जो मेरा होता था। और मैम मेरे हम्म। सिम्टम्स ये थे कि मुझे जैसे ही मेरे को पीरियड आने वाला है उसके 1 घंटे पहले मैम मुझे इतना सीवियर पेन होता था कि मुझे वोमिटिंग, थाइस पेन, और मैं हिल नहीं सकती थी, बॉडी मेरी कांप रही होती थी। मुझे मतलब एडमिट हम्म। ही करना पड़ता था। और नॉर्मल पेन किलर मेरे को सहन होती ही नहीं थी, वो वोमिट के थ्रू बाहर हम्म। आ जाती थी। तो मैम ड्रिप के थ्रू ही हम्म। मुझे पेन किलर दी गई हैं अभी तक। तो मैम इसके हम्म। बाद क्या हुआ, दिल्ली एम्स में 3 महीने के बाद मैं दोबारा वहां गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सिस्ट दोबारा से आ गई है और आपका हम्म। दोबारा से सर्जरी होगी और आपकी ओवरी निकालनी पड़ेगी। तो मुझे समझ में हम्म। इतना, तो मैम मैं बायोलॉजी से हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि यार ओवरी हम्म। निकाल दूंगी तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी। तो मैम फिर मैं हम्म। वहां से हटी और मैं दूसरी जगह गई, तो उन्होंने मेरी डायनोजेस चला दी। मैं मेरठ में गई, तो उन्होंने मुझे बोला हम्म। कि आप डायनोजेस खाइए। डायनोजेस्ट हम्म। मैम मैंने 4.5 इयर्स तक रेगुलर कंटिन्यू रखी। मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई, मैं एम्स ऋषिकेश में भी गई। सारे डॉक्टर के ओपिनियन अलग थे। किसी ने बोला डायनोजेस्ट आप कंटिन्यू रखो, किसी ने बोला कि 4.5 साल तक कौन इन्हें कंटिन्यू करता है। तो मैम मैंने उस दौरान फिर वो स्टॉप कर दी कुछ टाइम बाद, 2020 में।
फिर मैम हम्म 2020 में मेरे को सेकंड सर्जरी के लिए बोला गया मेरठ में ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका आईवीएफ तभी होगा जब आपकी सर्जरी होगी। तो मैम अच्छा सर्जरी सर्जरी करने के मैम आज मैं डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से और मैं रूम पे पहुंची हम्म थी मैम, मेरा पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया वही। तो मैम मुझे लगा नहीं कि मेरे हम्म जो डॉक्टर थे वो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बस पैसा बनाने के लिए मैम कर लिया वो ऑपरेशन, क्योंकि उन्हें आईवीएफ करवाना था। तो उसके बाद मैम अच्छा उन्होंने मैम मेरा जो लिया होगा जो सैंपल लेते हैं, उससे उन्होंने मेरे को हाँ बोला कि आपको टीबी हो चुका है। तो फेलोपियन ओ ट्यूब का कुछ मार्क्स हाँ लिया था, और मैम मेरी एक फेलोपियन हाँ ट्यूब तब निकाल भी दी गई कि वो बहुत ओ हाइड्रोसेल्पिंग्स हो गया है और काफी गल गई है, तो उन्होंने वो निकाल दी। उसके बाद मैम मैंने हम्म 9 मंथ टीबी की मेडिसिन खाई, और उसी दौरान मैम मैंने ल्यूप्राइड इंजेक्शन आते हैं वो भी लिए, क्योंकि पेन मुझे रिलीव करना था। हम्म तो मैम 2 साल हम्म मेरे ल्यूप्राइड इंजेक्शन भी चले। फिर उसके बाद मैम मेरा आईवीएफ भी हो गया, 9 मंथ के बाद आईवीएफ भी फेल हो गया मैम, वो भी नहीं रहा। लेकिन मैम मेरे हम्म सिम्टम्स बिल्कुल बदतर होते गए, वो पेन मेरा वैसा का वैसा ही मैम, कि मेरे को हम्म हॉस्पिटलाइज्ड होना ही है। जैसे ही 6 आवर्स कंप्लीट होंगे मुझे दोबारा से हॉस्पिटल जाना, मतलब पीरियड्स के दौरान, कि 6 मंथ तक हम्म 6 आवर्स तक वो पेन रिलीफ देगा, और उसके बाद वो नहीं देगा फिर उसके बाद। तो मैम ऐसे ही मेरे हम्म चलते गया, और पेन में सहन करते गई मैम। मैंने सारे ट्रीटमेंट दे चुकी, मैं एलोपैथिक में मैंने किया मैम, होम्योपैथिक में कर चुकी, आयुर्वेदिक में मैम मैं पहले गई पतंजलि में। तो पतंजलि का हाँ ट्रीटमेंट मैंने लिया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद मैम मैं पिछले 1 साल से आशा आयुर्वेदा है दिल्ली में, हाँ वहां से जी मैंने उनकी मेडिसिन ली। वो केरला पंचकर्मा पे वर्क करते मेरे ख्याल से। तो मैम उन्होंने मुझे ये बोला कि हम्म मैं आपका पेन मैनेज कर सकती हूँ। तो मैम अभी मेरे को पेन रिलीफ है, लेकिन मैम मेरी फर्टिलिटी का काफी इशू है, मेरे पास एक ट्यूब नहीं है, मेरा AMH 0.50 पहुंच चुका है इन 7 सालों में। और वहां पर भी मुझे मैम हाँ यही बोलती हैं कि अब आपको जाना तो आईवीएफ पर ही है, क्योंकि मेरी जो हाँ यूट्रस जी है उसके अंदर एडिनोमायोमा भी है मैम, बल्कि यूट्रस भी है, सूजन है मेरे यूट्रस में। तो मैम मतलब मेरी कंडीशन ऐसी ही रही है, और आज तक मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। मैंने मैम एक से यहाँ पे गुरुग्राम में ही कोई फोर्टिस हॉस्पिटल में एक सर्जन है, मैंने रिसेंटली उनको भी कंसल्ट किया था। लेकिन उन्होंने मुझे मैम, मेरी हाँ 2 सर्जरी हो चुकी है, उन्होंने मुझे ये बोला कि दुनिया में आप चले जाओ, अगर आपको अब कोई सर्जरी के लिए बोलता है तो प्लीज आप सर्जरी मत कराना, क्योंकि अंदर इतना एडहेसेंस हो चुका है कि इसकी सर्जरी होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम उन्होंने मुझे हम्म। यही बोला कि जल्दी से जल्दी अगर आपके पास मनी है तो आप 3-4 बार आईवीएफ कराइए, और हो सके तो वो पॉसिबल हो जाए, बस इसका यही ऑप्शन है, बाकी इसका ऑप्शन है ही नहीं। तो हम्म। मैं पेन रिलीफ पर हूँ। और मैम आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सुबह 3:30 बजे से मुझे इतना पेन होता है मैम, कि 4-5 आवर्स तक मैं मरे रहती हूँ, मेरे को उठा ही नहीं जाता मैम, कमर से आगे पेट पता नहीं क्या हो रहा है मैम, क्योंकि मेरी 21 डेज वाली वो टैबलेट भी स्टार्ट की है, ये हम्म 21 डेज वाली, ताकि मेरे को पीरियड्स आ जाए, क्योंकि मैम मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं। तो इस दौरान मेरी उत्तर बस्ती चल रही है अभी। तो उन्होंने हाँ बोला कि 3 मंथ उत्तर बस्ती होगी, तो उत्तर बस्ती के दौरान आपको हर मंथ पीरियड आना चाहिए। तो मैम जो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेन जो मुझे सुबह सुबह हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है अच्छा कि जो 21 डेज वाली टैबलेट मैम ने मुझे दी है ओवेरल करके हैं, तो मे बी उससे ये हाँ पेन हो सकता है। लेकिन मैम मैंने ये हाँ रियलाइज किया है कि पूरी लाइफ मैम पेन से भरी हुई है, जो भी एंडो पेशेंट है। मतलब मैम सुख हाँ तो खत्म ही हो चुका है, ना लाइफ बची है मैम, ना जॉब बची है, ना कोई ढंग से बात करता है, इन लॉज में ऐसी है मैम, मतलब इतनी दुख भरी जिंदगी हो गई मैम। मैं चाहती हूँ कि इसका सॉल्यूशन निकले, क्योंकि मैम हमारी लाइफ तो वर्स्ट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसीलिए आज ये चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर सही वक्त पे डायग्नोसिस हो और सही डायग्नोसिस हो, क्योंकि सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस कहना पूरा डायग्नोसिस नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस कहाँ है, कौन से स्टेज पे है, और इसकी क्या रिस्पॉन्स है। कुछ कुछ ऐसे हाँ। पेशेंट्स हैं जो और मैम हार्मोनल ट्रीटमेंट को हाँ जी बोलिए। मैम मैं एक बात बोलिए बोलना चाहूंगी, आपको। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है मैम। हाँ जी मैम, मैं हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बताइए। मैम मेरा कहना ये है कि जब हम इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें हल्का हल्का पेन होता है मैम कॉलेज डेज में, तो उस टाइम पे हमें जो डॉक्टर बोल देते हैं कि ये लड़कियों को तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है, शादी के बाद सही हो जाएगा। मैम अगर वहीं पर हमें पता चल गया होता तो हम ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट होते, लेकिन मैम हमें डायग्नोज ग्रेड 4 में हो रहा है।
और उस टाइम तक सारी हालात बिगड़ चुके होते हैं। बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ और इसीलिए कह रही हूँ कि नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग दैट देयर कुड बी समथिंग मोर टू अ पेन देन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पेन और अ पेन रिलेटेड टू अ साइकिल, वो भी एक बात है, वहां पे भी मिस होता है। और जब डायग्नोसिस होता भी है तब भी फुल डायग्नोसिस नहीं होता है, मीनिंग एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट अ कंप्लीट डायग्नोसिस. You have to understand what stage the diagnosis, the endometriosis in, where are the lesions, what are the lesions responsive to, and what is the age of the patient, and depending upon the age and the journey, meaning married है, unmarried है, school going है, college going है, या mid life में है, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश की कि आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स थे वो कितने साल थे, और उसके बाद में जब आपकी डायग्नोसिस हुई तो अब तक की क्या ट्रीटमेंट हुई. अब इसी क्वेश्चन के ऊपर से आप में से कई सारे लोगों ने कहा, सायली ने फिर से हाथ उठाया. सायली, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, ma'am. I would like to extend the thing that Pushpa ma'am just said, and even you addressed it. That whenever you go to the doctor for the first hand, like when we get our periods, and in the first year we are going to the doctor, patients or anywhere you don't get this idea that period pain A is valid and it happens, it's real, it's not in head. And second, like there can be two reasons. First can be primary dysmenorrhea or period pain, and second is like secondary dysmenorrhea. Now secondary dysmenorrhea can be because of PCOS, endometriosis, and any other clinical conditions, and primary Right. dysmenorrhea is a normal period pain that any woman can go through. But now what has happened is this message is just been translated as period pain is normal. So this Right. is something which is very dangerous. It's kind of half information, misinformation, which is spreading around, and it's affecting all of us in the long run. Thank you. And I would like to follow this up with a question. So we know that doctors normalize it, but how about parents and families? Everybody, I have myself experienced everybody, and at some point of time I would like to tell this ma'am as well, that when everyone around you is telling you that it's in your head, it's in your head, at some point of time I'm sure each one of us would have also tell ourselves also, like शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे ही हेड में है, या मैं ही सेंसिटिव हूँ. ये सबको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्रेशर की वजह से महसूस हुआ होगा. द इंटरनल टॉक्स दैट वी टेल टू आवरसेल्व्स. So it's actually the fake narratives, the misrepresented narrative that goes around. It makes us to question ourselves as well. So yes, awareness is the key to it, I feel. ट्रू. और आप में से कितने लोगों को ऐसे फैमिली की तरफ से भी सुनना पड़ा कि ये तो नॉर्मल होता है, इवन आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कि थोड़ा सा सहना पड़ता है? विनीशा? मैम एक्चुअली मेरे को तो यही सुनने में मिला कि हमें तो नहीं होता था, हमें तो नहीं, पता नहीं कोई क्या प्रॉब्लम है. मतलब मैम पीरियड पेन को ना जैसे एक होता है मैम, पहले भी होता था, ये नहीं है कि बिल्कुल पेन नहीं होता था, वो बियरेबल होता है मैम जैसे. लेकिन मैम जैसे इतना पेन होता था ना मैम, इवन हस्बैंड भी नहीं समझ पाते हैं कि आपकी कितनी सीवियर कंडीशन है, कि आप रो रहे हैं. मतलब मैम सबको यही लगता है कि मतलब एज ए ड्रामा टाइप, कि मतलब ये तो होता ही है, नॉर्मल है, मतलब इनको ही ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सहन करना. बट मैम सही बात ये है, जो इस पेन से खुद 11 नंबर गुजरा है ना मैम, वो ही उस 11 पेन को नंबर समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है. मतलब आज उर्वी बिल्कुल. हमारे में तो मैम बस ये है कि और पेन किलर ले लो और काम कर लो. तो आपको लगता है कि ये जो जानकारी है फैमिलीज में और स्पाउस में या मदर में ना अबे होने के ऑब्वियसली कारण गाड़ी भी से गया कभी कभी डायग्नोसिस में डिले होता है, मीनिंग आप डॉक्टर के पास थोड़े देर से जाते हो, तुरंत नहीं जाते हो? यस मैम, वो तो है ही. बट मैम जब डायग्नोज हो भी जाता है ना मैम, तो एक जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना मैम, कि चलो ये प्रॉब्लम में है मैम, वो तो शायद ही किसी को मिलता होगा, मतलब लेडीज को. क्योंकि मैम उस पेन को आप किसी को बता ही नहीं सकते कि वो कितना, मतलब कितना टेरिफिक Severe होता है. है ना मैम वो पेन. मतलब कोई नहीं समझ सकता मैम उस चीज को ना. मैम मेरे को ऐसे होता था रात में, जैसे ही मैम बता रही थी मैम, मेरे को सोते सोते रात में 1-2 बजे, पीरियड्स नहीं है मैम, कुछ नहीं है, पीरियड्स खत्म हो गए, ब्लीडिंग नहीं है, बट मैम अचानक से वो पेन उठ गया. और मैं सोचती थी अब हस्बैंड को क्या बताऊं, मेरे को पेन हो रहा है. मैम 1-2 घंटा ऐसे ही सहन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, शायद बंद हो जाए. बट मैम लास्ट में फिर वही है कि आपको पेन किलर ही खानी पड़ती है मैम. मतलब
मैंने तो मैम एक एक महीने में कम से कम 30 पेन किलर्स भी खाई हुई है मैम, 10 डेज में, मतलब इतना अनबियरेबल वो पेन होता है। बट मैम कोई नहीं समझता है। मैंने देखा मैम लेडीज भी जो जैसे मदर इन लॉ है या फैमिलीज में और बड़ी हैं, वे मैम ऐसे ट्रीट करते हैं कि वे बहुत लकी है, उनको तो कभी नहीं हुआ ऐसे, कि हमें तो कभी हाँ नहीं जी। हुआ, हमने तो कभी ये सुना भी नहीं सिस्ट फाइब्रॉइड क्या होती हैं। तो मैम वो आपको एक ले डाउन ही करते हैं कि आप जैसे आप खुद ये कल्प्रिट है, मतलब ये तो मैम वो पेन है, और ऊपर से ये कि पता नहीं जैसे हमने खुद ही मैम वो अपने अंदर लेके आ गए हम सिस्ट को ना, जबरदस्ती के हमारे अंदर आ जाओ। मतलब हाँ, मतलब नहीं एक ये तो है इमोशनल ही। सपोर्ट मैम बिल्कुल नहीं होता, वो तो मैम हस्बैंड की तरफ से भी नहीं मिलता। कोई कोई हो सकता है मैं बहुत लकी होता हो कि भाई मिलता है, अदरवाइज तो मैम हस्बैंड से मतलब मैम वो इतना ही मिलता है ना, आपको कुछ काम नहीं करना है। जब आपका काम का टाइम है तो आपको चाहे पेन किलर लो चाहे कुछ भी करो, आपको वो काम तो करना ही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कारण भी है कि डॉक्टर के पास भी जल्दी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको यस घर का सपोर्ट चाहिए किसी हाँ डायग्नोसिस के लिए या फिर डॉक्टर विजिट के लिए। यस थैंक मैम। यू। एंड हाँ जी, नुपुर आप कुछ कह रही हैं? Yes, ma'am. Actually, same condition is at my place also. Whenever I tell and pain, yeah, I'm not able to get up in the morning. Times painkillers, they painkillers and even hormonal pills, I would like to say, they disturb your sleeping pattern also. You don't get हम्म। to sleep early at night, and in the morning after defecation, the pain is so much, but still you have to stand in the kitchen, you have to work, and that sometimes it feels like you are helpless and there is no one to support you. I agree completely. And this is one of the reasons why we need a diagnosis and we need a treatment, so that you know actually what is happening to you and what to expect. The problem is also that you don't know what to expect and what's going to happen in the next few days or months or That's years. what. And that suspense is also not good, because if you know what to expect, then you can prepare yourself psychologically and And these physically days, for I it. used to feel that I don't know my own body and what to expect in the next cycle. It's totally like it's unpredictable that what your next cycle brings to you. That Every is time true. the symptoms, some symptoms are new, some get even worse. I mean, it's totally unexpected. Very true. I completely agree. Pushpa, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मैम मेरे को एक चीज ये जाननी है कि क्या हम 24 आवर्स जो हॉट वाटर बॉटल होती है उसे यूज कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन हाउ हॉट इट इज। इफ इट इज नॉट टू हॉट, हाँ यूज कर सकते हैं। इट इज एक्सटर्नल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम। वो पेन रिलीफ के लिए आप कह रहे हो ना? हाँ जी मैम, क्योंकि मैम मेरे को ना अभी इस वीक में पूरा मैम 24 आवर्स पेन है आगे और पीछे बैक में। तो मैं यूज तो कर रही हूँ मैम, लेकिन मुझे माइंड में लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उससे। ना ना, एक्सटर्नल किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ध्यान ये रखना है कि वो इतना गर्म ना हो कि स्किन में बर्न मार्क्स या ऐसे कुछ आ जाए। अगर आप वार्म यूज कर रहे हो वेरी हॉट, तो उसको टॉवल में ही किसी में रैप करके फिर आप यूज करिए, ताकि स्किन में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। बाकी 24 आवर्स यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एंड मैम एक चीज और बता दीजिए, जैसे काफी जो पेशेंट है उन्होंने बोला है कि जो हमको सुबह पेन हो रहा है पेट में, तो आप रात को सोने से पहले अजवाइन वाटर एंड अजवाइन और जीरे का गर्म पानी बना के ले सकते हैं। तो मैम अगर उसको डेली पिए तो दैट इज गुड? That is there is nothing wrong in it. First of all, it is Ayurvedic. Second, ajwain and jeera are supposed to increase your digestion. So if there is any gas or anything happening which increases the pain, then that will reduce. So there's nothing wrong in it. You can take it. ओके मैम, मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलिए। मैम हमारे बीच में ही एक मैम है साइकोलॉजिस्ट, कुछ उन्होंने बोला कि वो कुछ वर्क कर रही हैं। तो मैं हाँ सियाली मैम है आई थिंक। Yeah, yeah, slightly, yes. हाँ हाँ मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं मैरिड हूँ मैम,
मैं बार बार यही सोचती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ अपने लिए जीनी है, लेकिन मैम बार बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं पेन में हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे दूसरों को खुश करने के लिए यहाँ से इतना लंबा ट्रैवल करना है, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो मेरी कंडीशन नहीं जान रहे। तो मैम मुझे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? मतलब मुझे अपनी सुननी है, या मुझे हस्बैंड से फाइट करके अपने लिए जीऊं, या उन हस्बैंड को खुश करने के लिए उतनी दूर ट्रैवल कर लूं? मुझे प्लीज इसका कुछ आंसर दो, क्योंकि मैं इतनी एंग्जाइटी फील कर रही हूँ, इतना लो फील करती हूँ मैम। आप मुझे हेल्प करो प्लीज। Yes, ma'am. I'll just answer this in short. We can, because I know we have other things also to discuss. But ma'am, जो आपने पूछा है, ये doubts हमने सबने navigate की है at some point of time. जो भी endometriosis के journey से, even before and after the diagnosis. बस relationships आपके change हुए, मतलब friends के जगह पे कभी employer होंगे, या I mean spouse के जगह पे कभी आपने feel किया होगा कि friends के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली, ये आपके सेल्फ एक्सपेक्टेशन, बॉडी जो एक्चुअली आपका इनपुट दे सकता है, और आपका जो सोसाइटल प्रेशर है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आपको बस इतना जानना है कि इट्स काइंड ऑफ एन ओशन एंड यू आर गोइंग थ्रू अ थिंग विच नॉट एवरीबडी नोज। सो कीपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको खुद को भी बर्न नहीं करना है, एट द सेम टाइम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जो आपको फील हो रहा है एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, भले ही किसी को अंडरस्टैंड करने मत दो, मतलब वो सामने वाला आपका बात ना समझ पाए, बट अगर यू आर कीपिंग योर पॉइंट, तो आपको ये होगा कि एटलीस्ट आई डिड अ वैलिड कॉन्वर्जेशन। For that point of time, I could convey what my body was feeling, what I was going through. So आप देखोगे कि ये जो ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं, या इसका इंटरवल कम होगा, या एटलीस्ट आपको उसके बाद इतना बुरा नहीं लगेगा कि आप उस फंक्शन में जा नहीं पाए, बट यू ट्राइड योर बेस्ट टू कम्युनिकेट टू गो एट दैट प्लेस, टू डू ऑल द थिंग्स। एंड इन शॉर्ट आई वांट टू से कि बायोसाइकोसोशल अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काइंड ऑफ इलनेसेस के टूवर्ड्स ट्रीटमेंट मॉडलिटी देखने के लिए। जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दे गिव अस बायोमेडिकल अप्रोच, बट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो सोशल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली अगर मुझे मिले कभी सेशन, आई वुड एक्सपांड इट इन डिटेल इन फर्दर, बट एज ऑफ द now I'll just say keep realistic expectations from your own self and try to communicate the maximum, and ये expectations छोड़ दो कि कोई आपको first instance में समझने वाला है। यही short answer है इसका। I ओके hope मैम, this थैंक helps. यू। Thank you. Yeah. Ma'am, even Thank you, I want Saili. to say something and ask to Saili. Yes, please. Yes. Yeah, go ahead. Actually, at my place also, sometimes what happens is, even in pain, sometimes like I'm working in the kitchen, I'm taking care of my child, but you know, sometimes these things come to my mind that I'm doing injustice with my body. If Yeah. someone is not thinking about my pain, why I am also made to think that you should also ignore your pain, you should also ignore your body and just focus on your household chores and all. Right. Why am I made guilty for everything? Rather, I am only in pain. I'm the one who is suffering, and I'm the one who is Right. made to feel guilty if I'm not, standing to their expectations or something. This is actually, we are a group of club now. Ma'am, as a physician, you may be knowing this. You must have heard a lot of voices like individuals like us going through us. And what I can say is I can see a wave of change, because physicians like Ratna ma'am and other individuals who are so motivated, they not only just do their practices, but they also make sure that they speak up for cause, and listen to individuals like us and raise support group meetings and initiatives. I think as of now, yes, the reality is we are being asked to understand, we are being asked to overwork, we are being asked to do research at the back end. You have been asked a lot as a person, and healthcare seekers, they need empathy, they need respect. Moreover, treatment is something, okay, वो long run में मिलेगा, but empathy and respect is what एक्चुअली सब लोगों को चाहिए होता है, जो नहीं मिलता है। बट द इनिशिएटिव दैट वी आर गोइंग टू, ऑल ऑफ अस, इज दैट वन डे फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी क्वेश्चन लाइक दैट, एंड वी शुड रियली थैंक
all the physicians who are working in the favor of us apart from their normal duties. Thank you, Saili. And just to add to what Saili said, Pushpa and Nupur, both of you, whether or not you have endometriosis, as women, you have to understand that there are certain things that you can do and certain things that you cannot do, because women multitask, तो बहुत सारे काम आपको एक साथ करने पड़ते हैं. And when you have a condition like endometriosis, वो और ज्यादा difficult हो जाता है. वैसे भी difficult होता है women का life, especially if they are doing many things, meaning they are going to a formal office, they are managing a big family, if you're staying in a joint family, they're having small kids, they're managing the kids, they're managing the husband's expectations, managing societal expectations. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और एक बैलेंस लाना होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप करो तो आपको खुशी होगी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट यू अटेंड अ मैरिज, then that will give you happiness, and वो endorphins release होके आपको happiness होगी तो आपका pain automatically कम होगा. But suppose you have to go to a function where there is absolutely no use, or it is something that you can avoid, then you have to make a choice कि मैं ये वाला function जाऊंगी और ये वाला function नहीं जाऊंगी. And when you do that, you have to convey that message in a way that people will take it as your decision. ये आपको शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा इसमें मिलेगा opposition, because people expect women to follow what they are told, especially in the family. But slowly, when you start setting your boundaries and saying, okay, this is what makes me comfortable, और ये चीज मैं करूंगी, और this is something that is not, I'm not comfortable with, or today I'm not good enough to go somewhere, then people will start understanding. But वो आपको boundaries बनानी पड़ेगी. वो boundaries जब तक नहीं बनेंगी, तब तक आपको दूसरे के expectation के हिसाब से जीना पड़ेगा. And Ma'am, but still, that is if one. we try to state our opinion clear and loud, then we are the one who comes in their bad face. If we are the ones who stay quiet and we suffer, even sometimes, I feel so bad that I'm crying in pain and still working, and everyone at my home, they are just ignoring my tears also, and they are like, okay, काम तो हो रहा है ना हमारा, so what? I mean, it feels that, it's not our fault that we are having this condition. It's not our fault that we are born as women. Still, we have to बिल्कुल suffer, and I don't know, बिल्कुल. sometimes And it just makes you feel like, why? Question ourselves no, only. and that is the space where groups like this can play a very big role, because अभी तो हम आप सबसे बात कर रहे हैं, but at some point we will also talk to family members, we'll talk to partners, and when they listen to more than one voice. अभी तो ऐसा है ना कि सिर्फ वो आपकी आवाज सुन रहे हैं. जब आप 20 औरतों की आवाज सुनेंगे, जब रियल लाइफ स्टोरीज देखेंगे, जब उनके बारे में पढ़ेंगे, तब उनका मन बदलेगा. फिलहाल उनको सिर्फ वही दिख रहा है जो वो घर में देख रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि बाहर में ऐसी बहुत सारी और भी विमेन हैं जिनको इस तरह की तकलीफ है. तो वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है, और होपफुली हम जो अभी इस तरह की डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम और लोगों को भी एजुकेट कर पाएंगे और फैमिलीज एंड सोसाइटी में भी अवेयरनेस ला सकेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के अराउंड में है, क्योंकि वो सिंपैथी नहीं है या एम्पैथी नहीं है या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, डू यू थिंक दैट कंट्रीब्यूट्स टू डिले इन डायग्नोसिस? तो जो डायग्नोस्टिक डिले होता है, या फिर डॉक्टर के पास में जाके एक सलाह मशवरा लेने का मौका जो होता है, उसमें भी डिले होता है या देरी होती है, बिकॉज सपोर्ट फ्रॉम फैमिली इज मिसिंग और सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस इज मिसिंग. डू यू थिंक दैट हैपेंस? Maybe Yes. Anshul can speak. She Ma'am, raised a hand for quite some time. in my case, this doesn't happen. Like, my husband has been supportive to take me to timely diagnosis, and even if there is some problem, he has been supportive. But my only concern is that, people assume things, and they are like, ठीक है, painkiller ले लो, ठीक हो जाएगा. They don't they are not ready to listen to ready to listen to the sufferers. Like, we know what we are feeling. Painkillers are not working for us. We are not feeling better with the painkillers. We are rather getting other symptoms using painkillers. But they are like, नहीं, अब तो ठीक हो जाना चाहिए, painkiller ले तो लिए.
these things now, they sometimes bother you a lot. And So true. also, I mean, in my case, it has been that whenever I think about these things now, these small things, these days, these small things, they bother you a lot. And these things, they give you a stress. And whenever I'm in stress, my pain actually increases. बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको ऐसी चीजें चुननी पड़ेगी जो आपको खुशी दे, एंड उस पे फोकस करना पड़ेगा. अंशुल वाज ट्राइंग टू स्पीक, सो अंशुल इफ यू कुड स्पीक. मैम 6 महीने में इतना ज्यादा रोई हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आया है कि आपको कोई भी नहीं समझेगा, नॉट इवन डॉक्टर्स. आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब मैंने जिस स्ट्रेस में थी तब तब मेजर फ्लेयर अप्स आए थे मुझे. इट वाज लाइक हाँ. 24 आवर्स फुल मंथ, हम्म 30 डेज. हम्म उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे अपने लिए, अब मुझे अपने आप को प्रेफरेंस देना है. अब फैमिली और सब कुछ छोड़ दिया था मैंने मेरी, क्योंकि हम्म वैसे भी सोशल लाइफ कुछ भी नहीं थी ड्यू टू पेन. हम्म तो मैंने अपना हम्म अपना अपने ऊपर फोकस किया है. मैंने सिर्फ अपने आप को प्रेफरेंस दिया है हर चीज में. मैंने अपने लिए अपना टाइम सेट किया. मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं सब कुछ करती हूँ, पर अपने हिसाब से करती हूँ. मैंने अपने आप को प्रेफरेंस दिया है कि मैं मेडिटेशन करूंगी. मुझे अपने आप को काम डाउन हम्म रखना बहुत जरूरी है. मुझे दूसरों की किसी भी चीज से, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा, तो आप अपने आप को हर्ट मत होने दो. दैट्स हम्म. मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा. सबके अपने, क्योंकि दैट हर इज कोई यही बोलते हैं कि तो मतलब एक पेन किलर खाने से ठीक हो जाएगा. अच्छा, नहीं नहीं, चलो, नहीं हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक है, पर इट्स ऐसा नहीं होता है. ये इतने अनयूजुअल पेन एरियाज हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वहां वहां भी पेन होता है. इट्स लाइक समटाइम्स बिल्कुल. आपके इनफेक्ट मतलब मुझे जो राइट में सिस्ट है, तो मेरे राइट लेग में पेन होता है, ठीक है मैम, पर ये पूरा ऊपर तक, ईयर तक भी आता है. और पीरियड्स के सेकंड डे 200 मेरा बीपी पहुंच जाना, मतलब, और सिर्फ 1 डे के लिए, मतलब इट्स लाइक हॉरिबल. हाँ. और आप सोचोगे कि आज मैं ठीक हूँ, चलो ठीक है, आज हम ये कर लेते हैं, और अचानक से 2 घंटे में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फ्लेयर अप्स आ जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली मैं किसी को भी प्रॉमिस नहीं करती हूँ. मुझे जब लगता है तब मैं वहां चली जाती हूँ, जब मुझे लगता है तब मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ. मैं अपने आप को प्रेफरेंस देती हूँ अब. Completely agree with you, Anshul. And who is Gauri who wants to speak? Because I can't see the name Gauri here. Gauri, do you want to speak up? Yes, ma'am. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Go ahead. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. तो मैम, माय स्टोरीज, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे, हाँ. बिकॉज मेरा मीनार जो था वो 9 years की एज में स्टार्ट हो गया. And Okay. from then only my pain started and the pain was unbearable and कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो पेन हो क्यों रहा है, बिकॉज वो पीरियड्स के बाद भी था, पहले भी था. एंड कभी कभी हम्म ऐसा होता था कि 24/7 आई एम इन पेन. और फिर धीरे धीरे हम्म मेरी डॉक्टर्स के पास जाने लगे हम. एक होम्योपैथिक से मैंने स्टार्ट किया. कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी असर नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था. फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई जो होम्योपैथिक, सॉरी, आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक मेडिसिन देती थी. उनके पास गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो मेडिसिन दी, मुझे थोड़ा रिलीफ मिला. लेकिन मेरे जो अल्ट्रासाउंड होता था और एमआरआई, उसमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं. मतलब एक सिस्ट तक भी नहीं दिखता था. उसके बाद फिर हम्म. ऐसे ही टाइम निकलता गया, निकलता गया. 11 years हो गए इस चीज को. और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ. आपने केजीएमयू सुना होगा, केजीएमयू हॉस्पिटल, बिल्कुल. जो हाँ, वहाँ के जो बहुत अच्छे रिनाउंड डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, एचओडी है वहाँ पे, वो एक डिपार्टमेंट में. उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है स्पाइन हाँ. का. उन्होंने मेरी मेडिसिन चला दी. ओके. तो फिर मेरे एक रिलेटिव हैं, डॉक्टर हम्म हैं वो भी, उन्होंने बोला कि अगर इसको ये होगा ट्यूबरकुलोसिस, तो ये
अगर नहीं होगा तो ये 5 दिन के अंदर इसको मेडिसिन रिएक्ट करने लगेगी। वही सेम चीज हुई, मेरे नेक में बहुत बड़े बड़े से ऐसे गांठें जैसी बन गई। मुझे 105 104 फीवर होने ओके लगा और ओके मैं चल नहीं पाती थी। फिर उसके बाद फिर उसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे बिल्कुल मेरा विजन जाने लगा। फिर ओ मेरे माय एकदम गुडनेस से स्पेक्स लग गए, जो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। मेरी पावर एकदम से -3.75 चली गई। हम्म फिर ये कंडीशन हो गई और फिर मैं अपनी लेडी डॉक्टर के पास गई। उन्होंने जब मैं 12th में थी, उन्होंने बोला कि सबसे पहले, तब मैंने ये वर्ड सुना इंडोमेट्रियोसिस। तब मैं प्रोनाउंस भी नहीं हम्म कर पा रही थी ढंग से कि ये क्या है। फिर मैंने हम्म पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, बिकॉज आई वॉज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं पढ़ने लगी इसको। थोड़ा थोड़ा पढ़ा, हम्म पता लगा। फिर तब भी कुछ आता नहीं था, किसी भी अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, किसी में कुछ भी नहीं आता था। मुझे एडमिट करना हम्म पड़ता था, इतना गंदा पेन होता था। पेन किलर्स पे रहते थे। मतलब मेरा हीटिंग बैग हमेशा मेरे साथ रहता है। पैचेस हम्म लगाते थे। और फिर हम्म सपोजिटरीज मुझे बोली गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक्सट्रीम हो गया। मेरी मुंबई में मेरी रिलेटिव रहती थी, उन्होंने बोला वहां आओ, वहां तुम्हारा हम लोग देखते हैं। वहां पे डॉक्टर इमरान हमजा वाला सैफई हॉस्पिटल, हम्म वो 16 ईयर उन्होंने प्रैक्टिस किया यूके में। उन्होंने जब हम्म उनसे मैं मिली, उन्होंने बोला कि ये सारे सिम्टम्स सब कुछ एंडोमेट्रियोसिस का है। एंड हम्म जो मुझे एक और चीज लग रही है, तुम्हें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी शायद हो सकता है। हमें डायग्नोस्टिक हम्म लैप्रोस्कोपी करनी ही पड़ेगी। एंड वो टाइम ऐसा था जब कोविड पीक पे था, 2020। हम्म हम्म तब मेरी सर्जरी हुई। एंड मैं लखनऊ से हूँ, मुंबई में ना कोई मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती थी तब। बिल्कुल मैं बिल्कुल अकेली उस हम्म बेड पे थी। हम्म और वहाँ पे बट मेरे डॉक्टर बहुत सपोर्टिव थे, थैंकफुली मेरे डॉक्टर बहुत सपोर्टिव थे। 1.5 आवर तक वो मेरी बातें सुनते थे, सब कुछ करते थे, अपना सब कुछ बताते थे। जब मेरी सर्जरी हम्म हुई, मैं जब थोड़ा अनकॉन्शियस थी, मुझे इतना ज्यादा था कि क्या निकला, क्योंकि मुझे ये तक बोल दिया गया था सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है, पागल हो तुम, मेरे रिलेटिव्स ने बोल दिया था। एक टाइम शायद हम्म अभी किसी ने बोला भी था कि फिर खुद को लगने लगता है कि शायद मेरे ही हेड में है ये। हम्म फिर तब एक नर्स ने बोला कि तुम इतना क्यों परेशान थी, कि तुम अपना, जब तुम थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो रही थी, तुमने यही बोला कि मेरे क्या निकला। हम्म फिर मुझे पता लगा कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस एंड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस 2। मेरी 2 सर्जरीज ओके एक बार में करी गई। फिर मुझे पता हाँ लगा कि इन दोनों डिजीजेस को साथ में इविल ट्विंस बोलते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल पी करती हूँ तो मेरे पेन बढ़ता है सिस्टाइटिस की वजह से। हम्म एंडोमेट्रियोसिस का पेन मैं समझ जाती हूँ। और पीरियड पेन हम्म मैं अलग समझ जाती हूँ। तो ये तीनों पेन जब एक साथ होते हैं, मैं अभी मेरे घर में एक कार आई, मैं शोरूम में बैठी थी और मेरे पेन बढ़ गया। मैं हम्म वहां पे ही हुआ कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इंजेक्शन लगवाओ तुरंत। थैंकफुली मेरे पर्स में एक पैच पड़ा था मेरा, मैंने कहा मैं वो लगाती हूँ, ½ एन आवर में रिलीफ मिलेगा मुझे। अच्छा और हाँ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, हाँ। बट 1 साल तक मुझे पेन नहीं हुआ। जोलाडेक्स इंजेक्शन लिया मैंने। उन्होंने बोला ही था कि आपके हम्म हेयर लॉस होगा, मेमोरी का इशू होगा, और वो सब हुआ। और हम्म एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, ग्रेजुएशन के टाइम मैं बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको करना है, एक रिसर्च वर्क करना है। तो मैंने बोल दिया मैं तो एंडो पे ही करूंगी, और कुछ मुझे करना ही नहीं है। तब मैंने और एंडो हाँ के बारे में जाना, और पेशेंट्स को जाना। अराउंड 30 हाँ पेशेंट से मैं मिली, मैंने बात करी, उनके साथ कैसे हम्म क्या हो रहा है सब कुछ। फिर एक रिसर्च पेपर लिखा, वही हम्म सब कुछ अभी तक। लेकिन 16 ईयर्स हो गए हैं।
11 इयर्स हुआ डायग्नोसिस में, 16 इयर्स हो गए हैं, कोई रिलीफ नहीं है, पेन होता ही है, हमेशा होता रहता है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हीटिंग बैग लेके बात कर रही हूँ। तो हाँ, बस ये अब एक्सेप्ट कर लिया है कि अब इसी के साथ ही रहना है तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शादी कर लो, सब सॉल्यूशन है, बट मुझे पता है कि वो रूल वो नहीं है, वो है ही नहीं। मुझे पता है कि वो चीज नहीं है, क्योंकि मैं पेशेंट से मिल चुकी हूँ, उनको कोई कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो यस, अभी बिल्कुल, और करियर ये बिल्डअप गलत है करने कि के लिए ट्राई कर रही हूँ। हाँ, और गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि आप शादी करके बच्चे पैदा कर लो तो हाँ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ये इसीलिए हार्मोन मैं रिलेटेड लखनऊ है। से, जी हार्मोनल हम्म रिलेशन है पूरा। और मैं लखनऊ से फिर मैंने मास्टर्स अपना मुंबई से किया, अकेली रहती थी फ्लैट में, सब कुछ करना अकेले, खाना बनाना है, सफाई भी करनी है, पेन भी हो रहा है, सब कुछ होता रहता था अकेले। अगर पेन उठ गया है, हॉस्पिटल जाना है, अपने आप ट्रैवल करके जाओ हॉस्पिटल तक, इंजेक्शन लगवाओ, बहुत बहुत हम्म ज्यादा हार्ड सिचुएशन होती है ये। और ये सारी बिल्कुल जो भी है इंटरल्यूकिन्स वगैरह की वजह से है। थोड़ा पढ़ा इसके बारे में तो पता लगा, मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन्स बहुत सारे। अब लेकिन कोई ऐसा बिल्कुल। प्रॉपर कॉज ही नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से, जिससे हम इसका ट्रीटमेंट मिल पाए हमें। इसका एक्चुअली जितना अर्ली डायग्नोसिस हो उतना बेटर आउटकम्स होता है, बट यस हमारे मैम। देश में स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोसिस होता है, और तब तक ये ऑलरेडी सब जगह फैल चुका होता है, या फिर इस तरह के हम्म ऑर्गन्स में फैल चुका होता है जिसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। तब हम्म फिर आपको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है एंड पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसकी आउटकम इतनी अच्छी नहीं होती है और लोगों को लाइफ लॉन्ग इसके साथ में जीना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही थी, और आप लोगों में से कई लोगों ने ये बात कहा कि सिस्ट आपके को बताया गया था, फिर या तो आपको सर्जरी एडवाइस की गई थी या फिर दवाइयां दी गई थी जिससे सिस्ट सप्रेस हो गए या फिर निकाले गए, और इसके बाद में फिर से रीअकरेंस हुआ सिस्ट का, और फिर से पेन और मेडिसिन वगैरह आपको लेनी पड़ी। तो ये जो सिस्ट की डायग्नोसिस है, इसकी डायग्नोसिस आपको सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे दिया गया है या फिर अल्ट्रासाउंड किया गया? और अगर अल्ट्रासाउंड किया गया तो कौन सी अल्ट्रासाउंड आपको? ट्रांसवेजाइनल सजेस्ट किया गया फर्स्ट इंस्टेंस में, या फिर एब्डोमिनल करने के बाद ट्रांसवेजाइनल सजेस्ट किया, ट्रांसवेजाइनल के साथ में आपको एमआरआई या सीटी भी बोला गया? यस अंशुल। अंशुल प्लीज गो अहेड। हाँ, यस मैम। मैम, पहली में तो उन्होंने एब्डोमिनल ही सजेस्ट किया, उन्होंने बोला अपेंडिक्स है क्योंकि राइट साइड में था। और उसके हाँ बाद बहुत ज्यादा पुश करने पर मुझे मेरा काफी मतलब मुझे फोर्स करना पड़ा कि नहीं, आप प्लीज मेरा वेजाइनल कीजिए। तब वो हुआ, और हम्म क्योंकि मैं अपेंडिक्स का दर्द समझती हूँ कि वो बहुत अलग होता है, और ये गायनिक से रिलेटेड है ये सब, क्योंकि स्टेबिंग पेन, शार्प पेन, इट्स हम्म इतना अजीब पेन होता है, और लेबर लाइक पेन, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी तो मैं समझती हूँ कि लेबर लाइक पेन काफी क्लोज हुआ है, लेबर लाइक पेन होता है, ऐसा लगता है सब कुछ बाहर आ जाएगा हाँ समटाइम्स। हाँ तो ये हम्म डायग्नोसिस एक्चुअली उसी के थ्रू ही हुआ है, मतलब। और जितना मैम अभी तक इतनी सोनोग्राफी हुई है उसमें आपका रेडियोलॉजिस्ट इतना मेजर रोल प्ले करता है कि वो कितना अच्छे से सोनोग्राफी करता है। अभी मेरी सोनोग्राफी में पहली बार एडेनोमाइसिस डिटेक्ट हुआ है, जो मुझे काफी डाउट काफी लंबे टाइम से था, मुझे 2 साल से। बिल्कुल। सो वो सोनोलॉजिस्ट भी ट्रेंड होना जरूरी है, और सारे बहुत। सोनोलॉजिस्ट इसको रीड करने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, यस तो मैम। वो और गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ करेक्ट करेक्ट मैम। तो एक है ना, सोनोग्राफी हमको ना अलग अलग इतना समझ में आया कि अलग अलग जाके करवानी चाहिए, और जो डॉक्टर आपको लगे कि जिसने बेटर तरीके से किया है, कई बार कुछ 5 मिनट में हो जाता है, कई बार मुझे आधा घंटा भी लगा है, इतना इतना टाइम में भी हम्म होता है। पर डायग्नोसिस अगर सही टाइम पे होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मतलब मैंने अपना जैसे डाइट के थ्रू मैनेज किया हुआ है, मैंने अब मैं इतना 1.5 साल 2 साल से इतना परेशान हो गई थी, अब ऐसा लगता है मैं खुद की डॉक्टर बन गई हूँ। लाइक मैं अपना खुद का डाइट, अपनी न्यूट्रिशन, अपना मैं एंटी एंटी कैंसर डाइट ले रही हूँ। लिटरली मैं आपको बोलूंगी कैंसर का इलाज है, पर शायद इसका इलाज नहीं है।
हाँ नहीं, वो एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी जितने भी कंडीशंस है उनका जो भी कैंसर डाइट है वो काम करता है, क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेशन या सूजन है उसको कम करता है। तो जहां जहां सूजन कम होती है और वो आप जी ऐसा डाइट लेते हो जो आपकी इम्यूनोलॉजी या फिर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली बॉडी हाँ, रेस्पॉन्ड करता है। इनफैक्ट मैं अपने तो अब मतलब सिस्ट पे काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लीवर पे काम कर रही हूँ, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हाई, ये एस्ट्रोजन डोमिनेंट डिसीज है। तो इस एस्ट्रोजन हाँ। डोमिनेंस होता ही है जब आपका लेवल बिगड़ जाता है हॉर्मोन्स। तो मैंने अपना, मैम, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। तो मैंने सिर्फ हम्म। लीवर की डाइट लेना चालू किया है। मैं मतलब कंप्लीटली मैं मतलब जो एंटी एंजियोजेनेसिस, जहाँ नए सेल्स आपके बॉडी में बन रहे हैं, वो कैंसर है या हम्म। एंडोमेट्रियोसिस है, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो हम्म। मैंने पूरी तरीके से अपनी वो डाइट ली है, और विद इन मतलब 4 मंथ्स में, अभी 4 मंथ से ले रही हूँ मैम, मेरा सिम्टम्स 0 पे आ गए हैं। और मेरी चीजें मतलब इनफैक्ट मेरा जो रेक्टम में भी इनफैक्ट मुझे एडहेशंस थे वो खत्म हो गए हैं। आपसे ना एक सेशन लेना पड़ेगा सारे ग्रुप के लिए कि आपने कैसे मैनेज किया डाइट के थ्रू से। मैम सो वी बिल्कुल ऑलरेडी हैव मैम, 2 मैं स्पीकर्स नाउ। आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प एनी टाइम। आप मुझसे कभी भी ले सकते हो, पर मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ। मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी का भी मैं थोड़ा भी पेन कम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं समझती हूँ ये मतलब अभी भी मुझे मतलब काफी सारे लोगों का सुन के, और काफी मतलब मैं, मुझे रोना आ गया था कि मेरी भी सेम सिचुएशन उस टाइम पे थी है। अभी 4 महीने से आई एम पेन फ्री। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड एग्रीइंग टू शेयर। हम आपको बुलाएंगे एंड मे बी सायली को भी एक बार बुलाएंगे श्योर मैम, सारे ग्रुप को श्योर। एड्रेस करने के लिए। सो सायली, you wanted to say something? Yes, ma'am. Very important point that I would like to contribute at this point of time, extending what Anshul ma'am just said, was like there are two types of like illnesses or conditions overall, अगर हम biologically देखे जाए, एक जिसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है और दूसरा जिसका सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये क्लैरिटी अगर हम स्टूडेंट्स, आई मीन पेशेंट्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स को फर्स्ट पॉइंट से दे कि देखो ये मैनेज हो सकता है, मतलब द प्रोग्नोसिस कैन गो अप एंड डाउन। सो जो बोल रहे हैं मैम कि उन्हें ऐसा फील होता है कि घर में उनको नहीं सुनते हैं लोग उनकी, या फिर इवन दो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट बट पीपल आर टेलिंग अभी तो आपका मेडिसिन चालू है तो अभी तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सो व्हेन यू गिव हम्म। दिस क्लैरिटी एट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट it is going to be a journey which is going to be a roller coaster, it is going to be back and forth, so you can't just expect patients that or the healthcare seeker to always feel all right, and then we all know हमने hormonal medications लिए है तो उसके अलग side effects होते हैं। तो that thing is very less talked about, and I think this is one of the vital thing that will reduce the emotional burden of the patients, that they are understood at the first place, because मैनेजमेंट एंड साइंस अपने जगह पे है, वो अपने टाइम पे प्रोग्रेस होगा, एवरीवन इज वर्किंग एंड देयर इज नो क्यूरेटिव कॉज टू एंडोमेट्रियोसिस एज ऑफ नाउ, देयर इज ओनली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट मोडालिटीज टू इट, बट पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज वेरी वाइटल, आई फील, in the long run. I completely understand, because a lot of patients come to us and say they have been advised surgery and they go into surgery thinking the surgery will cure them. And Yeah. they are in for a shock after 6 months or 1 year, they have another cyst and then they are told you have to undergo another surgery. तो वो पहले से बताया नहीं जाता है कि ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का तरीका है कि सिस्ट आप निकाल रहे हैं। ये सिस्ट निकालने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में सिस्ट नहीं बनेंगे, या फिर ये डिसीज ऐसा नहीं है जिसमें सिस्ट फिर से फ्यूचर में नहीं बनेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स ये सोच के जाते हैं कि ये सर्जरी डेफिनेटिव है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, but they are not told that this is a lifelong disease and that this procedure is temporary relief. Yes. And that is where there is a mismatch between expectations and what is being offered to them, and family also thinks कि ये तो last time डॉक्टर ने बोला इससे ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट क्यों बार बार फिर से या फिर फैमिली मेंबर क्यों बार बार फिर से कंप्लेन कर रहे हैं। तो I think that communication doesn't happen, and this is also part of the diagnosis, that this diagnosis means that you explain the complete natural history of the disease and its progression, कि ये कितने साल रहेगा और क्या क्या इसकी प्रोग्रेशन है, और इसके प्रोग्रेशन को अरेस्ट करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
So well said. And Gauri, I think your hand is also Yes, raised. ma'am. Ma'am, I would like Yes. to say one more symptom जो मैंने बहुत मतलब मैंने सुना ही नहीं है, सिर्फ पता नहीं क्यों मैं अपने साथ ही देख रही हूँ। मेरे प्यूबिक एरिया में इतना स्वेलिंग होता है जैसे कि किसी ने कोई ऐसा घर में जो कटोरा बोलते हैं ना जिसको, वैसे किसी ने एक हाँ हाँ वो रखा हुआ है। एंड वो फिर इतना हाँ ऊपर जाता जाता है, फिर वो ब्लोटिंग हो जाती है। एंड वो प्यूबिक एरिया का हाँ। स्वेलिंग रहता ही है। मैंने हम्म जीन्स पहनना बंद कर दिया है क्योंकि जीन्स मैं पहनती हूँ 26, और वो एकदम से टाइट हो जाती है इतना, फिर उस वजह से हाँ बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। एंड मैंने हाँ एक चीज मैंने करी है कि मैं अवेयरनेस का काम कर रही हूँ। एंड मेरा जो स्कूल है जिसमें हम्म मैं पढ़ती थी, नेक्स्ट मंथ हम्म हम्म उस स्कूल में मेरा एक ऐसा अवेयरनेस वाला प्रोग्राम उन लोगों ने मुझे बुलाया है कि प्लीज आप अवेयरनेस इन बच्चियों को दो, क्योंकि आप वो चीज पे गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। 173 मिलियन वुमेन के अबव लोगों को है, 10 in 1 हाँ, को है, बट लोगों को हम्म पता नहीं है। क्योंकि मेरा बिल्कुल। कभी नहीं आया अल्ट्रासाउंड में, एंड जब अभी सेकेंड टाइम हुआ, उन्होंने बोला ही था 2 या 3 इयर्स में ये आएगा ही आएगा। सेकेंड ईयर में ही मेरे लेफ्ट ओवरी में 3 हीमोरेजिक सिस्ट आ चुके हैं। जब मेरी सर्जरी हाँ हुई थी, मेरी राइट ओवरी और मेरा यूट्रस आपस में स्टिक थे, और मेरे एडिशंस थे। उसको बिल्कुल। किसी तरह उन्होंने रिमूव किया, लेकिन अभी अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। मैं मैम ने जो बोला, अंशुल मैम ने, कि डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चीज नुकसान कर रही है, फ्लेयर अप क्या चीज से आ रहा है। मुझे मशरूम, पाइनएप्पल, सोयाबीन, इन हम्म सब से बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होता है। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं खा के कि किस चीज से फ्लेयर अप हो रहा है। तो ये बाकी सब हो ही रहा है। I, yeah, no, I completely agree with you. And also, as I said, ultrasound, not every sonologist can sort of read the sonogram and find out. And even to do a transvaginal ultrasound, people have to be trained. Not all gynecologists or all radiologists can do it. यस So, मैम, यस। if for a transvaginal, gynecologist भी करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। तो सारे गायनेकोलॉजिस्ट ट्रेन नहीं होते हैं करने के लिए, और सारे रेडियोलॉजिस्ट भी ट्रेन नहीं होते हैं। दे आर ट्रेन टू डू अ प्रोसीजर, बट टू रीड द फाइंडिंग्स ऑफ दैट प्रोसीजर दे मे नॉट बी ट्रेन। सो इट इज इम्पोर्टेंट यू गो टू द राइट पर्सन, नहीं तो डायग्नोसिस मिस हो जाती है। Yes, ma'am. साली Because in the second ultrasound, second sonography, my doctor हम्म told me कि एक मोनाली मैम करके थी रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला था मेरे डॉक्टर ने कि सिर्फ इनसे ही कराना, तुम्हें 2 से 3 दिन वेट करना पड़े, बिकॉज वो ही हाँ फाइंडिंग्स निकाल पाएंगी एंडोमेट्रियोसिस की। सो यस, बिल्कुल। ये चीज बिल्कुल सही है कि सब हर कोई रीड नहीं कर पाता है। लोग जल्दी में होते हैं कि एक का करो, दूसरे का करो, फटाफट रिपोर्ट्स बना के दो। ये चीज मैंने बहुत या देखी है अपने केस में। हाँ, जल्दी जल्दी करना भी एक बात है, और दूसरा, आप जो चीज को नहीं जानते हो वो आपको दिखेगा नहीं। सो अगर आपको मालूम है कि क्या चीज ढूंढना है, तब आप उसको ढूंढोगे और आपको मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या चीज ढूंढना है, तो आप प्रोसीजर तो करोगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं। वो जो लीजन्स जिसको आपको ढूंढना है या जिसे आप पढ़ना है, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। Sally, are you trying to add something? Yes, ma'am. I think we have been roughly mentioning the point of endobelly from last 2 to 3 conversations that are different patients have brought up. So I would just like to say that, I also have a Instagram account wherein I talk about all these things, wherein people can go and read about various biopsychosocial management to it. It is known as Endo Welfare Mumbai, Endometriosis Welfare Mumbai, or Endo Welfare Mumbai. But talking about endobelly, just like one of the fellow mate just said right now, that she managed it with diet. So it's a very individualistic disease. Again,
किसी किसी का डाइट लेने से एंडोवेली चला जाएगा, बट किसी किसी का फिर भी ना जाए। तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट देयर इज नो वन साइज फिट टू ऑल solution kind of thing, you know. I mean, 10 लोग, like people can have the same diagnosis, but it won't affect you as well. That's why there are clinical trials, that's why there are things like that, because they test that certain kind of solution, they work on how many number of people, and then it's brought into market. So it's very important to understand this thing as well, that if someone gives you a suggestion, there should be a hope, but there should be a fair hope associated with that, so that when you try and then check with your body, if it's working, it's good for us. If it's not, then but we should not be that sad that, you know, it makes your condition worse than what it was earlier. Yes. True. The last question, and maybe this is a discussion point that will need some time, is if any of you have gone to a gynecologist for anything, for example, if you have had a delivery, say a normal delivery, or if you have had some other procedure, then asking for signs and symptoms should lead to a suspicion in the gynecologist. However, that is very often missed. And then the second thing is, they say that laparoscopy is the best way to diagnose, because then you are able to visualize the lesions. But again, not all gynecologists are trained on doing a laparoscopy, and there are many surgeons who are not gynecologists but do laparoscopy, and they can also diagnose. So what is your experience with laparoscopy? Those of you who have undergone a cyst removal or who have been advised laparoscopy as a diagnostic procedure. Anyone? Were you aware that not all gynecologists are trained to do a laparoscopy? May I? Yes, please. Yes, ma'am. For me, my doctor was very trained, so I was very confident कि हाँ ये अच्छे से कर लेंगे. And it was not very painful for me. My pain was gone in 1 week only of laparoscopy. So yeah, and he suggested me to, for if he want to go for another surgery, we will do robotics only, because बार laparoscopy करना, and when you are unmarried, it is not, I am not going to do that, it will harm your fertility. ऐसे ही वो सेक पे रहती है endometriosis पे. So yeah, my doctor was a better one, so I suggest Dr. Imran कि अगर किसी को करवाना हो, so he is very good one. He is very good one. Yes, ma'am. Yeah, and robotics हर जगह पे available नहीं होती हैं. It is only in very advanced centers that you Yes, have ma'am. Yes, robotics. ma'am. और Yes, ma'am. और जिस डॉक्टर के पास में रोबोटिक्स का ज्ञान है, वो बहुत अच्छा सेंटर होगा. So those people are experienced gynecologists. Yes, ma'am. But I remember, I think one of you said कि they had gone to Meerut, I think, and जहाँ पे the surgery was not very successful, and they had to undergo a lot of trouble after the surgery. So उस तरह की small centers में जब आप जाते हो, तो they do not have the equipment, and sometimes they are not trained also, and they try and help you, but it might end up with other complications, because if the procedure is not done well, then it results in adhesions. तो वो सारे जो आपके organs है वो चिपक जाते हैं, because अंदर में inflammation होता है, and next time जब surgery करोगे तो वो जो भी surgeon है उसे बहुत परेशानी होती है. Plus इस तरह का पेशेंट को तकलीफ भी ज्यादा होता है. जब आप पोस्ट सर्जरी, आपको पेन एंड रिकवरी ज्यादा टाइम लगता है. So I don't know if Anshul wants to speak. Her hand is raised. अंशुल, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो मैम, वो एक्चुअली पहले टॉपिक पे था, नॉट दिस टॉपिक, क्योंकि Okay. मैंने कभी कोई सर्जरी में मुझे सजेस्ट की गई थी, पर हाँ. मुझे आइडिया था, मैं उस टाइम तक मैं अवेयरनेस थी, तो मैंने नहीं करवाया कुछ भी, क्योंकि ये फेल जाता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. लाइक अगर बिल्कुल. आपको एक्सपर्ट अच्छे नहीं मिले हैं, सर्जन अच्छे नहीं मिले हैं, तो आप सर्जन आप नहीं समझ पाते हो शुरुआत में कि
उनको कितना नॉलेज है और वो कितना एक्सपर्टीज है कि वो हर जगह से एडिशंस और लेजन्स ढूंढ के और उसको क्लियर ऑफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये इंफॉर्मेशन होता भी नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है कि कौन से सर्जन ट्रेंड है, कौन से नहीं यस है, यस या फिर किस किस सिटी में अवेलेबल है। एग्जैक्टली। Sally, did you want to say something? Um, yes, ma'am. I would like to add to this that, like, just like we do a normal Google search, we also have like Practos and other kind of apps, wherein they actually give the years, I mean, the qualifications of the surgeon, the specialization of that, and the number of years the person has been practicing in the field. Yeah. So this will be helpful for anyone who would like to know about like such kind of search engines and all those kind of. It's normal if you Google, you will get these. So if anyone wants to, I mean, awareness of this thing is also very important because it's a major decision that who is going to operate on us. And I mean, that's the thing I would just want to share, that there are apps, there are things that you can search through Google and other apps as well, when you can check what services and specialized service you want to choose. मैम इसमें I thought, yeah, go ahead. Go ahead, Anshu. कि मेरे काफी मैं एंडोमेट्रियोसिस के इनफैक्ट पूरे मतलब ये वर्ल्ड का जो हम लोगों का एक ग्रुप है उसमें मैं एडेड हूँ। इनफैक्ट इंडिया के काफी ग्रुप्स में मैं हूँ, उनमें काफी सारे लोगों ने यही एक्सपीरियंस उनके अच्छे नहीं रहे हैं जो मतलब प्रैक्टो पे और इस पे जो देख कर गए हैं। तो उसके लिए आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वही आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो Yes, I उन्होंने agree. And I think feedback from people who have had the experience is better एग्जैक्टली यस than reviews on Tracto, because sometimes they are paid reviews Oh yeah. यस to boost to boost the profile of that particular hospital or doctor. So I think one of the things that we can do is to collect information from people like you who have had good experiences with doctors and share that information on the website or someplace like that, and then leave it to the choice of the patient. So city-wise list maybe 3 or 4 doctors, and then यस leave it to the patient to decide कि कौन सा city उनको सबसे नजदीक पड़ता है and which doctor they would like to choose. They can have a chat with the doctor and see whether they are comfortable, and then choose to go to the hospital instead of just going to the nearest. तो बहुत सारे पेशेंट्स हम जब बात करते कहते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं या मुंबई के हैं, तो वो सुनते हैं दूसरे से कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, और दूर दूर से आते हैं। पीपल फ्रॉम पटना, आसाम एक्सेट्रा, दे ट्रैवल ऑल द वे टू मुंबई और बैंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली, बिकॉज दे हैव दिस परसेप्शन कि डॉक्टर्स यहाँ के सबसे बढ़िया हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। यू विल हैव डॉक्टर्स हु आर गुड इन कोलकाता में भी और इवन इन पटना, but we don't know about them. So maybe from experiences we can collect that information and share it with all of you so that people don't have to travel. And ये disease ऐसा है जिसमें बार बार आपको जाके अपना follow up करवाना पड़ता है. So distances matter. If it is too far, then it is very difficult for the person to do a follow up. So I think we have covered most of the questions that I wanted to ask. आप में से किसी और को कोई question पूछना हो या कुछ और बोलना हो? Anybody wants to say anything? Yes, Ma'am, I Ali. just want to add one statement. Yes, Can I? yes, yes, please. If anybody is going through Ayurvedic treatment, please go and check your lead level, because मेरा इतना बढ़ चुका था सर्जरी के टाइम कि मुझे 1 month उसको लोअर डाउन करने में लगा। सो वो एक चीज Okay. है जो बहुत मैटर कर रही है। बस दैट इज द पॉइंट। थैंक यू मैम। Thank you, Gauri. Yes, Ali. Thank you so much, Gauri, for your point. And I would like to add upon to Anshul ma'am, because when in my younger ages, when I was not having any knowledge about, which physician to see and even about endometriosis to say for, I was just a normal patient, used to cry to my parents that, I'm not feeling well, I am in periods pain. And they took me based upon the suggestions and Google review. We went to a person, to a physician. I would not like to disclose the name, but yes, a very well reputed one.
one, and my symptoms were not heard, and I was dismissed from that thing, saying that, oh, if you feel, मतलब ये तो just अभी आपका periods है, you can't take this. A woman has to go through pregnancy, she has to go through so much. Maybe your parents are working, that's why you're doing this for attention seeking and all those kind of things. And I had a breakdown. I had a bad breakdown after that session, and I lashed out on my parents as well, that why you took me to a physician like that. I mean, I'm paying my own money to listen to negative comments and being invalidated for the experiences that I had. So I do agree to Anshul ma'am's point as well. And then I feel that yes, it's a fair trade that you listen to the experiences that patients tell you, and you also read the reviews, and it's obviously based on all those kind of things and your own research that you decide to go to a doctor. And that's not the last point. I mean, you can decide to go listen, have one consultation, and still not feel to continue with the physician. So that is also valid in the long run, I feel. Yeah, That is actually, true. Also, yes, Anshul, please go ahead. साहिल, एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, मेरी खुद की 17 साल की बेटी है. Yeah. अगर वो मुझे एक बार भी पीरियड्स में कंप्लेंट करती है, एकदम से आई वाज लाइक, मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इट्स एक्चुअली हेरिडिटरी डिसीज. अगर ये आपको है तो हाई चांसेस है कि आपके डॉटर में भी पॉसिबिलिटी है. मुझे ऑल्दो लेटर पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब मेरी लाइफ के लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई है, पर स्टिल इसका कोई मतलब अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज खा रहे हैं दैट इज नॉट प्योर. आप कितना भी ऑर्गेनिक आप बोल के लाइए, आप कुछ भी आपका कुछ भी मतलब प्योर नहीं है. अभी प्योरिटी किसी भी चीज में नहीं है. तो बेसिकली अभी डॉक्टर्स समटाइम्स एक्चुअली मैं हाइपरथायराइड की पेशेंट हुआ करती थी 3 years बैक, जिसको मैंने होलिस्टिकली क्योर किया है. आई एम नॉट एट ऑल अ थायराइड पेशेंट नाउ. मुझे उसको 6 महीने लगे हैं. तो इसमें एक्चुअली that can be managed. yes, Go ahead. yes, not managed, even we can reverse it. ये एक होप नहीं है. देखो, होप नहीं होगा तो हम आगे लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस आपकी सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म कर देता है. तो मुझे लगा कि अगर मैं उसको ठीक कर सकती हूँ तो मैं इसको ठीक क्यों नहीं कर सकती. तो अभी फिर उसके बाद मैंने रोना बंद किया और सॉल्यूशन पे फोकस किया है, और जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स भी, अगर आप इनफैक्ट सैली, आप डॉक्टर्स के अगर हम किसी के थ्रू जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जो उसको डॉक्टर सूट हुआ, उस सेम कंडीशन, क्योंकि सबकी बहुत एंडोमेट्रियोसिस में कंडीशंस बहुत डिफरेंट है. सबको अलग अलग जगह लेजन्स हैं, तो सबके सिम्टम्स भी इसलिए बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. पर डाइट ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है. अब आप ये, क्योंकि आपका जब तक इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे ही आएंगे. यू हैव टू मेक योर लिवर स्ट्रांग, यू हैव टू मेक योर फूड वेरी लाइट. लाइक आप बीमार हो, आपको ये मानना है और आपको एकदम लाइटेस्ट फूड खाना है. आप नहीं कर सकते कुछ चीजों में, आप मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा अगर आपको इसको ठीक करना है. तो अभी लाइक मेरी, अगर मैं जो अगर खाना खाती हूँ, इट्स नॉट एट ऑल इन माय, मतलब ये मेरी लाइकिंग में नहीं है, पर मैं उसके थ्रू पेन मैनेज कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ. बिल्कुल. एंड आई थिंक डाइट में भी ऐसे ही है. वन सॉल्यूशन डजंट फिट एवरीबॉडी. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट Yes, you सॉल्यूशन have फॉर to यू. experiment. Yes, and there is somebody called Diksha who's raised the hand. So, if you can talk. Hello. हाँ जी, बोलिए. I'm sorry, I don't know why my name is showing Deeksha. It's Gargi. What's your name? My name is Gargi. So Gargi. Hi, Gargi. Yes. hi. So actually I'm not agreeing with what Anshul ma'am is saying. Maybe it worked for her. I did it for 2 years. I was fine, but since last 2 months I'm in a lot of pain. And 2 years back when my diagnosis was done, in fact 1 year back also, my TVS was showing my ovaries are stuck with the uterus and other things. After a year also, it's the same only. So I did everything with the diet. My pain was managed. Everything was there. But since last 2 months, the pain is back. I don't know what's the reason. So I don't know. Maybe it's one solution doesn't fit all. Wala she is right. But it's very confusing. All in all, it's very confusing. Something is working for one person, other is not working.
I would also like to add that, just like ma'am also mentioned earlier, that one solution fit for all is actually definitely not the thing, because two individuals can have the same diagnosis, but they will always have a different body system. And I mean, you have to consider the pre-existing comorbidities, like the existing illnesses or the existing risk factors that you may have. I mean, I can have endometriosis as I can belong to risk factor from for some other disease as well, or I can have some other medical conditions, you know. That's why it's a very comprehensive kind of approach that you give to this, and also very individualistic one. And like just like people are mentioning that certain things may even work for the same person in the short run, but not in the long run. So it's again trial and error and experimenting. All we want to do is like just get a better quality of life at the end of the day, so that we become more functional in terms of, you know, work and other aspects of it. So yes. I want to add one more thing. It's not just diet, it's a complete lifestyle. I have changed my Yeah. complete lifestyle from मैं अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशंस मेरे अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, मतलब अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, राइट? जो हमने बचपन में कहावत सुनी है वो एक्चुअली आपको करना पड़ेगा। मेरी कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज हुई है। इट्स नॉट जस्ट फूड, फूड यू हैव टू टेक फूड एज अ मेडिसिन, वॉट एवर यू टेक यू हैव टू टेक फूड एज अ मेडिसिन। आपको ब्लेसिंग्स देनी है अपने आप को, आपको हर चीज वो करनी होगी जो आपको खुश रखे। आपको मतलब आपको जल्दी सोना है, आपको जल्दी उठना है, आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा ऑर्गन कब डिटॉक्सिफाई होता है, कैसे बॉडी सुपर इंटेलिजेंट है, आपको सिर्फ उसको राइट कंडीशन देनी है। एंड फूड इज लाइक वन ऑफ द कंडीशनिंग। एंड आपको टाइमली सोना है, आपको टाइमली उठना है, आपको योगा भी करना है, आपको वॉकिंग भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, भले आप वो 10 मिनट के लिए करो, पर कंसिस्टेंसी इज द की। I'm putting castor oil pack for my lower abdomen, which जिसने मेरा पेन मिरेकलियसली कम किया है, मेरा सिस्ट का साइड रिड्यूस किया है। लाइक castor oil pack, it's a complete lifestyle I'm following. It's not just food. Yeah, that is true. And even these packages have to be customized in the sense that each one will need a different kind of a package. And it is a long process where you have to keep experiment till you find the right solution. So, and for that, you need a good coach. And those kind of coaches are not available. Your doctors are definitely not good coaches because they don't have the time to listen to you. And that is a big problem. I think we need people who can actually help you navigate the journey and arrive at those solutions. So I see Pushpa has raised her hand. Pushpa, आप बताइए। मैम मैंने क्या चीज देखी है, जैसे अंशुल मैम तो काफी क्लियरली बता दे रही ओपनली कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन मैम मैंने ग्रुप्स में ये काफी चीज ऑब्जर्व किया है कि जो लोग खुद को सही कर लेते हैं, अगर वो ग्रुप में आ रहे हैं कि मैंने अपने आप को ये कंट्रोल कर लिया, ये कंट्रोल कर लिया, पर्सनली मुझे आप मैसेज कीजिए प्लीज, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। और मैम अगर उनसे पर्सनली बातें करो तो वो अपने कोर्स के चार्जेस बताने लग जाते हैं कि हमारे कोर्स का चार्ज ये है। हाँ, अरे मैम मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने अपने आप को क्योर किया है तो थोड़ा हमें भी बता दो, हम भी सही हो जाएंगे, क्योंकि मैम पैसा तो हम लगा रहे हैं ना अपने ऊपर। तो मैम मुझे अंशुल मैम की बात बिल्कुल। बहुत सही लगी, वो बता रही हैं यहाँ पर। और अंशुल मैम मैं आपसे ये हाँ। जानना चाहूंगी कि क्या आपको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस ही है? मुझे ग्रेड 4 एंटरमेट्रिसिस है, एडेनोमाइसिस है। इनफैक्ट मेरी लेफ्ट ओवरी में जो चॉकलेट सिस्ट है काफी छोटी है, पर वो अटैच्ड है मेरी यूट्रस की वॉल से। मेरा रेक्टम और वेजाइनल वॉल अटैच्ड है। मेरी राइट ओवरी में भी ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर सिस्ट है। अच्छा मैम। और मुझे 0 God bless सिम्टम्स you. हैं फिलहाल। और ये अभी मेरा 3 महीने में काफी डिक्रीज भी हुआ है। ओके मैम। मतलब Sally, you've raised your hand मुझे again. फोर्थ ग्रेड है मेरा। CA 125 का लेवल काफी हाई भी आया था पहले, जो कि अब काफी नॉर्मल रेंज में है। As I Yeah. said, I'm working on my liver, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको दूसरा हार्ट बोलते हैं आप शायद।
जो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन जहां जहां से जा रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपकी मेडिसिन और आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल काम करेगा। Yeah, as they say, your gut is your second brain and your liver is your second heart. तो अगर आप ये दोनों चीज मैनेज कर पाए तो आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। साइली? Yes, ma'am. Yeah, Saili. I do agree to all the points that Anshul ma'am has just said. It's really, an eye-opener for the people who are going through same kind of things. But I would also, however, like to highlight a contrasting point that the degree of pain is never directly proportional to the stage you are in terms of evidence-based endometriosis management. And it is very vital to understand this thing because someone can be stage 0 and can experience different sort of symptoms, can have totally life-shattering other symptoms like bowel-related symptoms or different. So they can have simply different site of endometriosis. There are different types of endometriosis, deep infiltrative and others sort of things. And endometriosis do have travel to other parts of organ as well, like bodily organ, like thoracic and other parts. So it's very, very vital that we understand that while we share all these things, it's very important to share this as a focus group meeting, but also keep this in mind that ultimately it's a disease management group that we need: a physician, a dietitian, a psychology graduate, Counselor. and Yeah. counselor, and everyone to manage one individual. And that treatment plan will be different for all the individuals at different point of time. It will be different for me as a person at my different age group as well. I mean, I may have same physicians, but something that when I am nearing to the, say for example, I have just got married, I will have a different treatment plan because it will be more towards fertility and towards my baby health. But if I am towards my menopause, then a physician will give me totally different treatment plan because that times quality of life and the different things are at priority list. So it's that I want to highlight. Very true. So there are several factors, and that is why not everybody responds in the same way. So if you're unmarried, you have a different treatment plan. If you're married, not conceived, you have a different plan. If you're married, conceived, and having children, you have a different plan. And if you are, say, mid-30s or late 30s and early 40s, you can afford surgeries and you have a different plan. Again, your body responds differently depending upon your stage of life. So young people respond faster, older people respond more slowly, and a lot of hormonal treatments, etc., are titrated accordingly. कि आप कौन से stage of life पे हो. So I think we spent more than 2 hours on a day, which is a Sunday. Thank you so much all for being present here and giving us your precious time. We will try and put together a report and share it for your comments so that we are sure that we have captured everything. We have recorded the session today, but only for report writing. We will destroy it once the report is written, and everything is confidential. No social media or any other posts will be made out of this. So thank you again for sharing your stories with us, and have a nice Sunday. Thank you, everyone. Thank you so Thank you much. so much, ma'am. Thank you. Take care. Yeah. Bye. Bye.